Hi bachcho. So welcome to my yet another class on decoding calculus. So this class I have specially designed for students of class 11th और आप अगर class 10th के भी हो और अगर आपको बिल्कुल calculus basics से नहीं आती, if you don't know the calculus from the basics, then this is the course for you. I am taking the classes every Sunday. This is my third class and today we will go deep into differentiation. So बच्चों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने in the first class we learned to visualize what calculus is. Calculus क्या होता है? What is differentiation? What is integration? In the second class, we sort of derived what differentiation is. हमने graphically समझा differentiation को. हमने differentiation को derive किया with the first principle, and then we solved some problems of differentiation. Today we will go deeper into differentiation. ठीक है? So what are we going to do today? So this is my class on differential calculus 2. And what are we going to do today बच्चों? This. ये देखो. Today we will do differentiation के theorems. We will do chain rule and we will do differentiation of implicit functions. All these three are very, very important for solving any problem of math or of physics as well. And बच्चों, in my class, if you understand what you are getting, what I'm teaching you, do press on the like button. This is like feedback for me. And अगर आप नए हो, if you are new to Vedantu classes, do press on subscribe and press on the share, press on the bell icon. बच्चों बहुत सारी important classes आ रही हैं, ठीक है? Yesterday Abhishek sir took a very special class on physics on Chandrayaan. Chandrayaan space में कैसे जा रहा है? How is it going to moon? What is the physics behind it? Was the class. Today there was a class on KVPY as well. How do you prepare for KVPY? Please do watch that as well. Okay, chalo. Now let us move ahead. So these are some basic formula of differentiation which all of you know. हमने किए थे last class में. X की power n dy by dx is n x की power n minus 1. ln x 1 upon x. E की power x differentiation doesn't change. E की power x sin का cos का minus sign. We know all that. And we are going to now solve some problems based on this. Clear? So these are the formulae which I told you in the last class. Nothing special. You should note all these down. आपने last class में note किया होगा. नहीं तो आपको PDF में मिल जाएगा. The PDF of every class gets available after the class on the Telegram group, जिसका link description में है, और on the Vedantu app. ठीक है? So all these were the formulae. Nothing special. Trigonometric formulae. Nothing special again. Let's move ahead and do some problem solving. We did the product rule last time. Today we will solve some problems and do the quotient rule as well. So बच्चों, let's do this. Find derivative of f of x is equal to, देखो इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है. f of x is equal to x cube e की power x ln x. Three functions are getting multiplied. In the last class we did the product of two functions. Now three functions are getting multiplied. क्या करें? चलो, let's try to solve it. हम क्या करेंगे बच्चों, देखना ध्यान से. अब क्या करो, कंबाइन एनी टू टू बिगिन विथ. चलो मान लेते हैं कि हम एक्स क्यूब को लेते हैं एक फंक्शन. लेट मी टेक एक्स क्यूब एज वन फंक्शन, है ना? एंड लेट्स टेक दिस एज द सेकेंड फंक्शन एंड लेट्स डिफरेंशिएट यूजिंग प्रोडक्ट रूल. क्या करोगे आप यूजिंग द प्रोडक्ट रूल? क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, सो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय the difference, the other function e raised to power x ln x, right? Plus अब हम क्या करेंगे, next one is keep x cube as it is and then we will differentiate e raised power x ln x. So let us differentiate that. E raised power x ln x d by dx of e raised to power x ln x. Agree? So क्या किया, first function का differentiation, second function as it is, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन. इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं. ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब देन डी बाई डी एक्स ऑफ दैट, मतलब सबसे पहले ई की पावर एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स दैट इज 1 अपॉन एक्स, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, देन एक्स क्यूब ऐसे कैसे आ जाएगा, देन डिफरेंशिएट ई की पावर एक्स, इट्स डिफरेंशिएशन इज ई की पावर एक्स इटसेल्फ एंड एल एन एक्स as it is. Do you realize, if you see very very carefully, what is happening here? What is happening here? सबसे पहले आपने क्या किया, देखना ध्यान से.
सबसे पहले आपने क्या किया, आपने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, रेस्ट एज इट इज. इन द सेकेंड टर्म आपने क्या किया, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म. देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. ओके, इन द फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएट द फर्स्ट फंक्शन, लीव अदर्स एज इट इज, बाकी दोनों को ऐसे कैसे छोड़ दो. इन द सेकेंड टर्म डिफरेंशिएट one of the functions, leave others as it is. In the third term differentiate one of the functions, leave others as it is. समझ में आपको क्या किया बंदे, तीन फंक्शंस हैं. इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट थ्री फंक्शंस का प्रोडक्ट, वेरी सिंपल, तीन टर्म्स में आंसर आएगा. सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, रेस्ट टू एज इट इज. सेकेंड टर्म डिफरेंशिएट द सेकेंड फंक्शन, leave other two as it is. Third term differentiate the third function, leave first two as it is, nothing else. This is your answer, this is your answer. All right, अब अगर इसको बिल्कुल डायरेक्टली करना होता based on what I have taught you, तो क्या करते आप, what will you do, see क्या करोगे, डिफरेंशिएट करने के लिए थ्री टर्म्स. फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएट एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, रेस्ट टू एज इट इज, e की पावर x ln x, प्लस सेकेंड डिफरेंशिएट दिस, लीव टू एज इट इज, x क्यूब ln x एज इट इज, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, इट डजंट चेंज. गॉट इट. नाउ थर्ड, अब क्या करेंगे, ln x को डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल लीव टू अदर्स एज इट इज, प्लस लीव टू अदर्स एज इट इज, x क्यूब e की पावर x, डिफरेंशिएट ln x 1 upon x. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों एज इट इज. नाउ दिस बिकम्स योर स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फंक्शंस. अगर इसी को जनरलाइज करें बच्चों तो क्या आएगा, इफ आई जनरलाइज इट व्हाट विल यू गेट, सी ये तो अपन ने कर लिया, दिस वी हैव डन. नाउ अगर इसको जनरलाइज करूं, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. इमेजिन आपके पास n फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इमेजिन n फंक्शंस आर गेटिंग मल्टीप्लाइड. व्हाट विल यू डू, स्टेप वन, इफ यू डिफरेंशिएट इट, f डैश x मीन्स, ये क्या लिखा है f डैश x, इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x. सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, लीव ऑल अदर्स एज इट इज, प्लस सेकेंड में डिफरेंशिएट द सेकेंड फंक्शन, लीव ऑल अदर्स एज इट इज, प्लस थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लीव ऑल अदर्स एज इट इज, और ऐसे करते जाओ टिल फाइनली यू रीच द डिफरेंशिएशन ऑफ nth फंक्शन, बाकी सारे एज इट इज. दिस बिकम्स योर फॉर्मूला. समझ में आया सबको बच्चों, क्या हो गया ये, क्लियर, एनी डाउट. वापिस आके देखते हैं उसको, कहां गया, हाँ ये रहा. ठीक है, देखो क्या बताया मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या किया हमने, हाँ सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर हमने सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर हमने थर्ड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, और फाइनली हमने nth फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, कीपिंग ऑल अदर्स एज इट इज. वेरी सिंपल, नथिंग स्पेशल. बढ़ जाए आगे. सो दिस बिकम्स योर फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर इट. नाउ लेट अस यूज इट इन सॉल्विंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स. डू इट बच्चों, ये अपने आप करो, डू इट योरसेल्फ. हाँ करें. f of x is equal to root x, e की पावर x, tan x, ln x. फोर फंक्शंस आर देयर, फोर फंक्शंस. डिफरेंशिएट, एक एक करके डिफरेंशिएट करते जाएंगे. करें बच्चों, क्या हो जाएगा, एक एक करके सबको डिफरेंशिएट करते हुए चले जाएंगे अपन. सो व्हाट विल हैपन, स्टेप वन, सबसे पहले रूट एक्स को डिफरेंशिएट करें. याद है सबको, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्या लिख सकते हैं इसको, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर हाफ. x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, n x रेज टू पावर n माइनस वन, हाफ माइनस वन, दैट इज माइनस हाफ, दैट इज 1 अपॉन 2x की पावर हाफ, दैट इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स. तो डायरेक्टली याद रखना बच्चों,
डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स. इसको आपको ऑलरेडी दिमाग में सेट होना चाहिए. यू नीड नॉट कैलकुलेट इट अगेन एंड अगेन बिकॉज इट रिपीट सो ऑफन. बार बार रिपीट होता है, राइट? सो टर्म 1 कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द टर्म 1? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, रेस्ट ऑल एज इट इज. What will be your second term? Second function का differentiation, that is e की power x, rest all as it is, root x, e की power x का differentiation, e की power x, right? Rest all as it is, that is 10x and ln x. Next term, root x, e की power x as it is, root x, e की power x as it is. 10x का differentiation कितना होता है बच्चों? कितना होता है 10x का? याद है कि नहीं? देखें, चलो अब देखते हैं इसके आगे. लेट्स सी द आंसर. आई थिंक समझ में आ गया सबको. पहले रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, सेकंड टर्म में e की पावर x का डिफरेंशिएशन, थर्ड टर्म में 10x का डिफरेंशिएशन, फोर्थ टर्म में ln x का डिफरेंशिएशन. बस वैल्यूज लिखते जाओ. ये कितना हो जाएगा? देखा आपने? लिखे वैल्यूज. कितना हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स, e रेज पावर x 10x ln x फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म रूट एक्स e की पावर x 10x ln x. थर्ड टर्म रूट एक्स e रेज पावर x 10x का कितना होता है? secant स्क्वायर x. डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इज secant स्क्वायर. तो कितना हो गया? secant स्क्वायर x ln x. एंड लास्ट में किसका हो जाएगा? ln x का. रूट एक्स e की पावर x 10x एंड ln x का डिफरेंशिएशन 1/x. दैट्स योर आंसर. दैट बिकम्स योर आंसर. कूल. नाउ इसको करो बच्चों. डू इट वेरी वेरी फास्ट ऑल ऑफ यू. आई होप सबको समझ में आ रहा है. यस और नो? आ रहा है? keep writing yes in the chat box if you're getting it, yes or no. all right. so बच्चों आइडिया ये है कि थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द क्लास धीरे धीरे आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए. सो कीप सॉल्विंग विथ मी इन द क्लास. ऑल राइट. बिकॉज डिफरेंशिएशन इज सिंपल. इट्स ऑल अबाउट सिंपल प्रैक्टिस एंड दीज क्लासेज आर स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th और क्लास 10th जिनको डिफरेंशिएशन पहले से अच्छे से नहीं आता. आई एम गोइंग वेरी बेसिक हियर. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं. हाँ बताओ क्या होगा ये? व्हाट विल दिस बी? एक्स क्यूब e की पावर x एन एक्स. सिंगल शॉर्ट में करेंगे. एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले. 3x स्क्वायर देन e की पावर x साइन x फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एक्स क्यूब एज इट इज, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, राइट, साइन x एज इट इज प्लस देन एक्स क्यूब एज इट इज e रेज़्ड टू पावर x एज इट इज. साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है? cos. दैट्स योर आंसर. दैट्स योर आंसर. सिमिलरली इसका कितना हो जाएगा? डायरेक्टली सिंगल शॉट आंसर. x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x रेज़्ड टू पावर n माइनस 1, रेस्ट एज इट इज, राइट. सेकेंड प्लस x की पावर n एज इट इज. log x टू द बेस a है बच्चों, इट इज नॉट log x टू द बेस e, राइट. तो मैंने क्या बताया था आपको? log x टू द बेस a अगर दिया है और उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको. हाउ डिड आई टेल यू टू रिमेंबर इट? इसको आप लिख सकते हो कैसे? d बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e. सबको पता है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी. बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी log x टू द बेस a है, तो मैं इसको लिख सकता हूं log x अपॉन log a. जो भी बेस लगाना है लगा दो. मैंने बेस लगा दिया e बिकॉज आई नो द फॉर्मूला ऑफ log x टू द बेस e. ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. सो दिस बिकम्स 1 अपॉन ln a. log a टू द बेस e इज ln a इंटू d बाई डी एक्स ऑफ ln x. log x टू द बेस e इज ln x. ये सबको पता ही कितना होता है? 1 अपॉन x. तो आंसर कितना हो गया इसका? 1 अपॉन x ln a. दिस यू ऑल्सो रिमेंबर. ये आपको याद रखना है. मैंने करके दिखाया बट यू हैव टू रिमेंबर इट. सो इसका आंसर कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम, हटा दो दिस पोर्शन. ऑल ऑफ यू क्लियर? सो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इफ आई रिमूव दिस एंड राइट द आंसर नाउ, सो आंसर विल बी 1 अपॉन x ln a, राइट. इसका डिफरेंशिएशन
into e raised to power x, and third term x raised to power n log x to the base a and e की power x, its differentiation is that as it is. Right? This is your answer. All right. Simple problems हैं. I want you to keep practicing so that ये धीरे धीरे फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हो जाएं. Because nothing special till here. Very simple. Right? So just look at the answers. This is the answer. Okay? Cool. Simplify करोगे तो ये आ जाएगा. All right. You can check it, your calculations. Now let's do. अच्छा. By the way, जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे, everything, the PDF of the entire class is available on the Telegram group और वहाँ पे आपके लिए assignments भी share होते हैं. So you can join the Telegram group for discussion. Students ask doubts there as well. This is the link, or the link you can find in the description of the video as well. ठीक है? And all this material is also available on Vedantu app, which is available on Play Store. Now, let us talk about the quotient rule. That is the rule of division. What is quotient rule? It says, अगर दो functions का division हो रहा है, if two functions are getting divided, then what is the formula? Formula is, first write denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator upon denominator का whole square. कैसे याद रखोगे बच्चों? सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर थोड़ा सा पावरफुल है क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी हो रहा है, ऐसे सोचो. सबसे पहले डिनोमिनेटर आएगा एज इट इज, कोई चेंज नहीं. डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. बस सिंपल सा फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे. एंड लेट अस ट्राई टू अप्लाई इट इन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम टू बिगिन विथ. तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है 10x को, सबको पता है 10x का डिफरेंशिएशन इज secant स्क्वायर, बट कैन यू डिराइव इट यूजिंग द क्वोशिएंट रूल? करके देख लेते हैं. अगर अपने को 10x को डिफरेंशिएट करना है, इमेजिन आपको इसका फॉर्मूला नहीं आता, इमेजिन यू डोंट नो इट्स फॉर्मूला, व्हाट यू वुड हैव डन? यू वुड हैव रिटन tan as sin upon cos एंड देन डिफरेंशिएटेड. तो क्या होता? लिखो जरा, सब लोग लिख के देखो. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. fx is 10x which can be written as sin upon cos. Right? Now let us differentiate. What does the formula tell you? Denominator as it is, denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator upon denominator का whole square. बस वैल्यूज पुट करते जाओ. cos sin का डिफरेंशिएशन cos माइनस sin as it is, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin. राइट? न्यूमरेटर कितना बन गया? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, इट विल बिकम 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. तो न्यूमरेटर तो हो गया 1, न्यूमरेटर इज सिंपली 1, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, which becomes 1 upon cos square, which becomes secant square. Of course, right? So formula is denominator differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator upon denominator का whole square. Now apply this thing in solving these problems. बच्चों करो. Do it. Do these problems on your own. Start with this problem बच्चों. x plus sin x upon x plus cos x. Use the quotient rule. Practice the quotient rule now. करें जरा. Oops. ये आंसर आ गया, कोई बात नहीं, फिर से जाता हूं पीछे. हाँ करो. करना शुरू किया. क्या हो जाएगा इसका? We want to differentiate this d by dx of this. सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, x प्लस cos x as it is, into differentiation of numerator. Differentiation of numerator, x का differentiation 1, sin का कितना हो जाएगा? cos minus. Now keep numerator as it is, keep numerator as it is, into differentiation of denominator. वो कितना हो जाता है? x का differentiation 1, cos का minus sin अपॉन क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, x प्लस कॉस एक्स
होल स्क्वायर। कैन यू डू द कैलकुलेशंस? इसके बाद अपने आप मल्टीप्लाई करो, मे बी कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिंप्लीफाई हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर। डू द कैलकुलेशंस ऑन योर ओन। सिमिलरली डू द कैलकुलेशंस फॉर दिस एज वेल। मैं जस्ट केवल टर्म्स लिख रहा हूं, बाकी कैलकुलेशंस आप करो टू चेक। फर्स्ट वी विल राइट डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स, आई एम डूइंग द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस साइन का कितना हो जाएगा, कॉस अपॉन कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। गॉट इट? कैन यू डू द थर्ड वन ऑन योर ओन? कितना हो जाएगा थर्ड वन? फिर से टर्म लिख के छोड़ रहा हूं, बाकी कैलकुलेशन आप करना। डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब तो बिल्कुल सेट हो गया होगा दिमाग में। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, सो दिस सिंपली बिकम्स 2 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कांस्टेंट 0, माइनस, नाउ वी विल कीप न्यूमरेटर एज इट इज एंड वी विल डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, राइट? सो जस्ट सिंप्लीफाई कर दो, विल गेट द आंसर एंड आई विल जस्ट शो यू द आंसर्स। सो आंसर्स आर दीज, you can check out the answers, check out the calculations from the PDF when the class is over. ठीक है, एक बार अगर किसी को कहीं पे भी डाउट हो, do the calculations on your own, check from the answer. All right, चलो let us move ahead without wasting time because there is nothing very special here. I am giving these problems to you ताकि आप practice करो, क्योंकि I am assuming कि आपको differentiation अच्छे से नहीं आता मे बी, okay? Because this is the special course for all the 11th graders who find calculus difficult. Okay, now chain rule. Now this is very important बच्चों, ध्यान से देखना। Chain rule is the heart of the problem solving of differentiation. Majority problems इस जोन में लाई करती है। अगर ये आपको समझ में आ गया, differentiation is a piece of cake, खा जाना आराम से, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। Chain rule. So what is chain rule बच्चों? It talks about composite function, मतलब function के अंदर function के अंदर function के अंदर function. If we have to differentiate it, then how do we do it? Okay? So मैं समझाता हूं आपको। इस डायग्राम को छोड़ो, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बहुत सिंपली समझा दूंगा आपको। मैं आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, देखना ध्यान से। किस टाइप की प्रॉब्लम्स है, लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू प्रॉब्लम। So the problems are of these type. Sine of tan मतलब function के अंदर function g of h of k of x. If this is the kind of function that you have, जैसे कि sine of tan of x, function of another function, right? जैसे cos of e की power x, function of another function. Right? If you have to differentiate these, how do you do it? Very simple. क्या करेंगे? सबसे पहले जो सबसे बाहर वाला फंक्शन है ना, से g, सबसे पहले we will differentiate the outermost function. Don't worry about what is written inside. What is written inside will be as it is. g का differentiation g dash. जैसे sin something. Listen to me very carefully. मान लो g क्या है? sin of something. Forget about the something. साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है? कॉस, किसका? समथिंग का। डोंट वरी। नाउ इमेजिन द सेकंड फंक्शन इज tan. h क्या है? tan है। tan समथिंग, tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? सीकेंड स्क्वायर समथिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर क्या रखा है। मान लो k है कुछ और, उसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर मैं करा दूं एग्जाम्पल की तरह। लेट्स बिगिन विद दिस, लेट अस स्टार्ट विद दिस। लेट्स स्टार्ट विथ y इक्वल टू साइन ऑफ tan x। मुझे करना है dy बाई dx। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है? सबसे पहले सोचो साइन ऑफ
समथिंग, फॉरगेट अबाउट समथिंग क्या है? साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन? कॉस। अंदर जो भी पढ़ा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट व्हाट वाज रिटन इनसाइड? tan। साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग। बट डोंट स्टॉप, नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट। अंदर आते जाओ, कीप गोइंग इन। नाउ वी विल डिफरेंशिएट tan। नो प्रॉब्लम, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan? secant square। दैट्स योर आंसर। समझ में आया? अगर इसके अंदर एक और फंक्शन होता तो लेट मी क्रिएट अ फंक्शन। लेट अस से द फंक्शन वाज साइन ऑफ tan ऑफ, कुछ भी बना दूं, मान लो ln x। मान लो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? इफ यू डिफरेंशिएट दिस dy बाय dx, स्टेप वन क्या बोलोगे? साइन ऑफ समथिंग। साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है? साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस। चलो भाई कॉस, जो भी अंदर लिखा है लिख देंगे, इनटू। नाउ गो वन स्टेप इनसाइड। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, जो भी अंदर लिखा है एज इट इज, वट एवर इज रिटन इनसाइड एज इट इज। नाउ वी विल डिफरेंशिएट tan। बच्चों व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan? tan ऑफ समथिंग, आई डोंट केयर व्हाट इज रिटन इनसाइड। tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है? secant square इनटू। नाउ व्हाट इज रिटन इनसाइड? अब और अंदर आ जाओ। फर्स्ट टू डिफरेंशिएटेड साइन कॉस, tan secant square ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? 1/x। नो प्रॉब्लम, बस। सो क्या हुआ? साइन समथिंग इज कॉस समथिंग, राइट? नाउ tan समथिंग इज secant square समथिंग। देन फाइनली ये समथिंग जो कि ln x है, उसका डिफरेंशिएशन 1/x। दैट्स योर आंसर। सो व्हाट्स योर आंसर? आंसर इज cos tan ln x secant square ln x into 1/x। ठीक है? सिमिलरली लेट्स डिफरेंशिएट दिस। इफ वी डिफरेंशिएट दिस dy by dx, बच्चों कितना हो जाएगा? इट इज cos समथिंग। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ समथिंग? cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? माइनस साइन। सो ये कितना हो जाएगा? माइनस साइन। जो भी अंदर लिखा था विल कम एज इट इज, e की पावर x multiplied by, then we went inside and differentiate what is written inside, e की पावर x। what is the differentiation of e की पावर x बच्चों? e की पावर x। तो ये कितना हो जाएगा? that's your answer। got it? so this is what we call as chain rule। why do we call it chain rule? because it keeps going like a chain। outermost function का differentiation rest as it is, whatever is written inside as it is। so sin का cos something, अंदर आ गए tan का secant square something, और अंदर आ गए ln का कितना हो गया? 1/x and so on। let's do, I'm sure कि कई बच्चों को confusion होगा। we will take more examples to make it more clear in your mind। आगे बढ़ते हैं, let us move ahead। ये solution है उसका, है ना? साइन का cos, साइन समथिंग cos समथिंग इज tan का डिफरेंशिएशन secant square। नाउ cos समथिंग इज माइनस साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन इज e की पावर x, राइट? नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। साइन ऑफ ln x करो सब लोग। साइन ऑफ ln x क्या हो जाएगा? जल्दी से, कैन यू डू इट वर्बली नाउ? साइन ऑफ ln x, साइन समथिंग साइन समथिंग। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? cos। सो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? साइन ऑफ समथिंग। साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? cos। जो भी अंदर लिखा है एज इट इज, वॉट एवर दैट इज रिटन इनसाइड एज इट इज, इनटू। नाउ लेट्स गो वन स्टेप इनसाइड। व्हाट इज रिटन इनसाइड? ln। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ln? 1/। दैट्स इट। इसी को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें। had the question been y of sine of ln of
कुछ ले लूं, क्या ले लूं, ln ऑफ 10x ले ले, तो कितना हो जाएगा dy by dx. इफ वी डू dy by dx, ठीक है, इनफैक्ट और कॉम्प्लिकेट कर दूं, इसको ऐसे कर देता हूं, tan ऑफ x की पावर 3. ओके, नाउ लेट्स डिफरेंशिएट. सो सबसे पहले साइन समथिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट साइन. सो साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा, cos. Whatever is written inside, write it as it is. ln tan x cube. Now multiply. So sin का differentiation कितना हो गया, cos. Now we will differentiate ln x. ln का differentiation कितना होता है बच्चों, ln something 1 upon something. ln x 1 upon x, ln something 1 upon something. तो ये कितना हो जाएगा 1 upon, क्या लिखा है, ln समथिंग 1 अपॉन समथिंग. क्या था समथिंग, समथिंग इज दिस. सो कितना हो जाएगा 1 अपॉन tan ऑफ x क्यूब. राइट, ये आ गया किसका डिफरेंशिएशन, ln का डिफरेंशिएशन ये आ गया. नाउ लेट अस डिफरेंशिएट tan. tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा इंटीग्रल इनटू सीकेंट स्क्वायर समथिंग. दिस इज ऑल्सो समथिंग, राइट, x cube. So tan something secant square something. All right, ये आ गया tan का डिफरेंशिएशन. Don't stop. Inside you have written x cube. Sin को डिफरेंशिएट किया cos, ln को डिफरेंशिएट किया 1 upon, tan को डिफरेंशिएट किया secant square. Then we went to the last function which is x cube. So x cube को भी तो डिफरेंशिएट करोगे. So x cube का डिफरेंशिएशन is 3x square. Got it? So this is your answer. Sin ln tan x cube, cos something, ln 1 upon something, tan secant square something, x cube 3x square. अब तो सबको क्लियर है. I hope everybody is clear with the chain rule now. I can create any random function. You can differentiate now. कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं. ये करो cos ln root x, cos ln root x, all of you. सबसे पहले क्या करोगे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस साइन के साथ क्या, साइन ना, cos माइनस ऑफ साइन ln 1 अपॉन रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स. कर लोगे, करें, क्या हो जाएगा, ये वर्बल होने चाहिए. सच क्वेश्चन शुड बी वर्बल फॉर यू नाउ. फर्स्ट विल डिफरेंशिएट cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन. सो cos समथिंग माइनस साइन समथिंग. नाउ कम इनसाइड ln समथिंग 1 अपॉन समथिंग. रूट एक्स का खुद का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था थोड़ी देर पहले. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स. सो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स. दिस इज योर आंसर. थोड़ा सा आपस में कंबाइन कर लो, इट विल लुक बेटर. सो माइनस साइन ln रूट एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 2x. क्लियर, एनीबडी एनी डाउट? फिर से रिपीट कर रहा हूं, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, वॉट एवर वॉज रिटर्न कीप एज इट इज. देन ln समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग. नाउ दिस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स. कूल. हाँ, ये करो जरा, डू दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ वाई स्क्वायर. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. यहां पे y लिखा है बच्चों, x नहीं लिखा. डिफरेंस बता रहा हूं, कई बार जो कंफ्यूजन होता है वो क्या है, अगर क्वेश्चन होता है d बाय डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, तो क्या करते हैं हम, तो क्या करते हैं बच्चों, cos समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, एवरीथिंग इज x. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, cos को डिफरेंशिएट करते हैं.
कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, जो भी अंदर लिखा है एज इट इज। फिर आप बच्चों किसको डिफरेंशिएट करते, फिर आप डिफरेंशिएट करते किसको, एक्स स्क्वायर को। आप बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। आई एम जस्ट राइटिंग इट सो दैट यू कैन विजुअलाइज इट, जो कि 2x है, मैं बस आपको करके दिखा रहा हूं। तो आंसर क्या हो जाता, आंसर होता माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 2x। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। यहां पे बच्चों क्या हो रहा है, यहां पे x नहीं है y है, तो क्या करूंगा सबसे पहले, और मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू x। आई एम डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू y। सो सबसे पहले क्या होगा, cos का कितना हो जाएगा, माइनस साइन समथिंग विच इज y स्क्वायर। बट विल यू स्टॉप देयर, नो। फिर तुम बोलोगे कि मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसको, y स्क्वायर को। फिर तुम बोलोगे डिफरेंशिएट करूंगा किसको, y स्क्वायर को। डिफरेंशिएट करो किसको, y स्क्वायर को। बट यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, x नॉट y। सो ये कितना हो जाएगा बच्चों, नाउ d by dx ऑफ y स्क्वायर, रीड दिस एज, ध्यान से सुनना, d by dx ऑफ y स्क्वायर, यू आर रीडिंग इट एज समथिंग का स्क्वायर। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग का स्क्वायर, 2 टाइम्स समथिंग। y क्या है, y x नहीं है ना, y कुछ फंक्शन, y कुछ है, y is not x। so something square 2 times something into differentiation of that something, into differentiation of that something dy by dx। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, this will become minus sin y square into 2y something square into something का differentiation dy by dx। Now you cannot go beyond dy by dx। मुझे क्या पता dy by dx क्या है, बस यहां से dy by dx। So dy by dx of this comes out to be this, जिसके अंदर एक dy by dx क्रिएट हो जाता है। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे ना तो ये और क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस, क्लियर, अभी और करेंगे तो और क्लियर होगा ये। सो सी द आंसर हियर, cos y square cos something minus sin something into d by dx of y square into d by d, ये y नहीं है, this is d by dx of y square। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2y dy by dx। दिस इज योर आंसर, सेम जो मैंने किया। नाउ बच्चों अब आ जाओ इम्प्लिसिट फंक्शन पे, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर y और x सेपरेट नहीं हो सकते। सच फंक्शंस वेयर यू कैन नॉट सेपरेट y एंड x। यूजुअली फंक्शंस कैसे देखें आपने, यू सी y इक्वल टू समथिंग x, बट फंक्शंस वेयर यू कैन नॉट कीप y on one side and x on one side are called implicit functions. But how do we differentiate these implicit functions? 2 methods. Second method एक shortcut है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। First let us do with the method 1. This is called partial differentiation, not in your syllabus, but still for objective solving you can use this method, but I'll come to it later. First we'll solve it with the method 1. कैसे, let's learn through example. So ये 3 आपके पास implicit functions हैं। Look here, these 3 are implicit functions in front of you. Implicit मतलब क्या है, in this ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c, मैं y को अलग से निकाल के नहीं रख सकता। I cannot take out y and keep it on one side. But the question is to find out dy by dx. What is the question? Find out dy by dx. मैं dy by dx कैसे find करूं? कुछ नहीं, उठा के differentiate कर दो। Differentiate the entire function with respect to x. कैसे? इससे शुरू कर दें, इससे शुरू करें। Let me differentiate both left hand side and the right hand side with respect to x. Let me differentiate both left hand side and the right hand side with respect to x. Ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx
प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 0. वो तो 0 ही होगा. 0 इज अ कांस्टेंट, इज डिफरेंशिएशन इज 0, सो राइट हैंड साइड विल बी 0. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे. यहां पे सीखना है आपको ध्यान से. नाउ ax स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई टेंशन नहीं है, a तो कांस्टेंट है. a कितना हो जाएगा? a विल रिमेन एज इट इज. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा? 2x है ना. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, a इज कांस्टेंट एज इट इज. नाउ 2hxy, इसको ध्यान से देखना. नाउ 2h इज कांस्टेंट, you are differentiating x into y with respect to x. You are differentiating x into y with respect to x. Product rule. ठीक है, कितना हो जाएगा? 2h as it is. Differentiation of first function. x को differentiate करो, कितना आता है बच्चों? 1. So 1 into y, that is y plus, समझ में आया? x into y है प्रोडक्ट रूल. सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x. x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1, y एज इट इज प्लस नाउ x एज इट इज. बच्चों व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x? dy by dx. dy by dx. ठीक. सो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? फर्स्ट टर्म आ गई ये. सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? है ना. सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? फर्स्ट टर्म का ये आ गया, सेकेंड टर्म का ये आ गया, थर्ड टर्म का कितना आ जाएगा? by स्क्वायर. बच्चों डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? x. सो b कांस्टेंट, d by dx ऑफ y स्क्वायर. अभी हमने किया, अभी बताया मैंने आपको बच्चों, d by dx ऑफ y स्क्वायर. हाउ डू यू डील इट? समथिंग का स्क्वायर 2 टाइम्स समथिंग, b 2 टाइम्स समथिंग 2y है ना. समथिंग स्क्वायर 2 टाइम्स समथिंग इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, y के साथ डिफरेंशिएट भी करेंगे, dy by dx. दिस इज योर थर्ड टर्म, राइट, एंड सो ऑन. सो ये आ गई थर्ड टर्म. फोर्थ टर्म कितनी हो जाएगी? बहुत सिंपल है, ये तो सभी कर लोगे. कितना हो जाएगा? 2gx, 2g कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1, वो तो गया, 1 हो जाएगा, प्लस अब आ गया ये 2fy. 2fy का कितना हो जाएगा बच्चों? 2f कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx. सो 2f dy by dx है ना, प्लस c तो 0 है, c का डिफरेंशिएशन 0, c इज अ कांस्टेंट, इज इक्वल टू 0. तो क्या आ गया? 2ax प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट. उसमें से क्या करो? इस पूरे में से dy by dx कॉमन ले लो. टेक dy by dx कॉमन एवरीवेयर. कैसे? क्या हो जाएगा? dy by dx कहां दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है dy by dx, यहां दिख रहा है dy by dx, और यहां भी दिख रहा है dy by dx. टेक dy by dx कॉमन, take other things on the other side, that will give you dy by dx. so calculation check करते हैं. now let's check the calculation. समझ में आया? देखो क्या किया, डिफरेंशिएट किया पूरे को, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. वी गेट ax स्क्वायर 2ax 2hxy 2hy प्लस 2hx dy by dx. सेम थिंग जो हमने किया, by स्क्वायर 2y dy by dx मल्टीप्लाइड बाय b, 2gx 2g 2fy 2f dy by dx. c का 0, राइट हैंड साइड इज 0. इस पूरे में से dy by dx कॉमन ले लिया, dy by dx dy by dx dy by dx. बंदर बच गया, hx by f 2 2 2 2 सब जगह से कैंसिल हो गया. रेस्ट थिंग्स ऑन द अदर साइड, टेक दिस थिंग ऑन डिनोमिनेटर ऑन द अदर साइड, dy by dx इज दिस. This gives you dy by dx. Such is the method to differentiate implicit functions. कुछ नहीं करना होता बच्चों, सीधे उठा के डिफरेंशिएट कर दो. Just keep differentiating as it is with respect to x. y को कैसे डील करना है समझ में आया बच्चों? y is a function. When you are differentiating with respect to x, you get dy by dx. Clear? अब आ जाओ सेकेंड वाले पे. The second one was
y is equal to x cos y plus y cos x. करो differentiate. This is implicit. Why is this implicit? Because you cannot separate out y and x. y को अलग से एक साइड में नहीं रख सकते आप. That's why. करो. What is the step 1? Keep differentiating both sides with respect to x. Differentiate both sides with respect to x. Differentiate both sides with respect to x. I am differentiating both sides with respect to x. ये तो सिंपल, ये तो dy by dx ही हो गया. dy by dx is equal to product rule x into cos y कितना हो जाएगा? d by dx of x into cos y plus d by dx of y into cos x. प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. प्रोडक्ट रूल लगाए कितना हो जाएगा? सबसे पहले x को डिफरेंशिएट कर दो. x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 cos y एज इट इज प्लस नाउ x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos y with respect to x. Differentiation of cos y with respect to x. I'm just solving this one right now. ठीक है? Now just I'm going step by step ताकि आपको कोई confusion ना हो. So ये कितना हो गया? cos y plus x. अब इसको देखो, ये चेन रूल है. cos something. बच्चों cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन. माइनस साइन. अगर x होता तो कोई बात ही नहीं थी, बट x नहीं है, y है. सो माइनस साइन y. बट यू कैन नॉट स्टॉप. आपको अंदर y भी लिखा हुआ है. x तो नहीं है, वो y है. सो यू हैव टू डिफरेंशिएट y एज वेल. सो y का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x? dy by dx. समझ में आया? सो x इंटू कॉस y का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन 1 cos y एज इट इज प्लस x एज इट इज. cos y का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा? माइनस साइन y cos something minus sin something into something which is y dy by dx. something का differentiation with respect to x. Similarly, can you write it directly? फटाफट ये लिख सकते हो जल्दी से. कितना हो जाएगा? differentiate y with respect to x dy by dx into cos x as it is plus y as it is डिफरेंशिएशन ऑफ cos x. cos समथिंग नहीं है बच्चों, cos x है. cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x. राइट? सो ये आ गया. तो एक टर्म तो ये आ गई और एक टर्म ये आ गई. राइट? क्लियर है सबको ये? सो dy by dx इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. पूरे में से dy by dx को कॉमन ले लो, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके चले जाओ. दैट्स योर आंसर. लेट्स चेक द आंसर. dy by dx इज इक्वल टू cos y plus x minus sin y dy by dx plus dy by dx cos x minus y sin x. सेम थिंग विच आई डिड. इस पूरे में से क्या किया? dy by dx, dy by dx, dy by dx. आई टुक इट कॉमन ऑन वन साइड. कर सकते हो सब लोग? dy by dx को कॉमन ले सकते हो? आ जाएगा. सो dy by dx के साथ आएगा 1 plus x sin y minus cos x. वो मल्टीप्लाई हो रहा था dy by dx से. आई ब्रॉट इट इन द डिनोमिनेटर, गिव्स यू द आंसर. एक बार वापस से कैलकुलेशन चेक खुद से जरूर से करोगे. ऑल ऑफ यू चेक द कैलकुलेशंस ऑन योर ओन एज वेल. क्लियर है बच्चों सबको? ऑसम. Partial differentiation is something which I'll teach you in the next class. In the next class, I will teach you how partial differentiation happens, the shortcut method. I will start my class with partial differentiation. In the meanwhile, बच्चों, 2 home assignment problems I'm giving to you. I want your answers in the chat box. Pretty interesting problem. If you get the right method, it will happen in 2 steps.
इट लुक्स प्रिटी डेंजरस टू लुक एट। देखो इसको ध्यान से। हिंट इज, अगर आपने सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन को पढ़ा हुआ है तो वहां पे हिंट है इसका। हिंट इज, इफ यू हैव लर्नड सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन you will find a pretty smart way of doing it. This was an IIT problem का सब पार्ट। नोट किया? Note it down. This is your home assignment problem number 1. I want your answers in the chat box, not here live, in the chat box after the class so that I can see your names. किसने किया है? हो गया? 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x4 into 1 plus x8 so on till 1 plus x की power 2 की power n dy by dx चाहिए। Second problem is this one. Note it down. If y is a function of x is sin square x, if y is a function of sin square x and f dash x is given to you, then what is dy by dx? These problems are not straightforward जो मैंने आपको दी हैं. These are some higher order problems, but I want you to rack your brain with these problems and tell me the answer in the chat box. देखते हैं कौन इनके आंसर देता है। ठीक है? Note it down. Don't forget to watch 2 sessions. Yesterday's Abhishek sir session on Chandrayaan, the physics of Chandrayaan, how it got launched, how it went into the orbital, how the orbital got shifted, how the trajectory of the Chandrayaan moved into elliptical orbit to a transfer orbit to moon, how then it landed on the moon. What is the physics behind it? ये सारी physics आप actually 11th में पढ़ते भी हो. Okay. Anyways, the second class that I want you to watch is KVPY information, which I gave you today at 4 PM. जरूर से देखना उसको. ठीक? चलो. On that note, do join Vedantu Telegram group. The link is there in the description. And अगर बच्चों आपको समझ में आया, do press on the like button so that I get the feedback. And if you are new, don't forget to subscribe by pressing on the bell icon as well. And as I always end my class, बच्चों कैसे end करूंगा मैं क्लास? याद है? Always बच्चों keep this on your faces. Y is equal to x square. Keep smiling. Keep the confidence going. Be happy, be inspired and be blessed. खुश रहना बच्चों, आपके ऊपर स्माइल बहुत जचती है, इट सूट्स यू। ठीक है? एट योर एज नेवर बी सैड, सब हो जाएगा लाइफ में, चिल। ओके, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।